Hello friends, welcome to your own channel English with Devangan sir. I'm Suresh Kumar Devangan. I welcome you all in this channel. In today's video, we are going to discuss General Financial Rule 2019. It is part 2. I'm pretty sure you must have seen part 1 where I discussed with you from question number 1 to question number 15. Today we have targeted 50 questions again so that you may prepare yourself very well for the forthcoming examination that we are going to have. What I have planned today is to talk you on central government and state government relationship, accounting, audit and re-audit, administrative control and government e-marketplace, that is GEM, you know very well, how GEM works, what are the clauses, amount on different occasions and bidding system. So these are the points that we are going to discuss, and before I discuss all these things, thank you very much for your response that you are giving me, and I do expect from you that you would directly be talking to me through YouTube comments, through WhatsApp or Gmail or through Facebook. Anything you want to convey me, please do me a favor by that, and if you like the video, please press the like button and do comment. If I'm spending 30-35 minutes with you giving all this detail, I always wait for your valuable comments that encourages me to go ahead, that encourages me to do correction in my task, so that I may go enthusiastically with the task that I have taken in my hand. So without wasting much of time, let us begin with the thing we are here for. General Financial Rule 2019 Part 2 with question number 51 we'll begin with. So here we go. The very first question is, capital expenditure is generally met from. कैपिटल एक्सपेंडिचर किन से किया जाता है? तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है. तो आप देख सकते हैं कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? मनी स्पेंट बाय ए बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन ऑन एक्वायरिंग और मेंटेनिंग फिक्स्ड एसेट्स सच एज बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट्स, दे आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो अब इस हमारा प्रश्न ये है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहां से स्पेंड किया जाता है? एंड द राइट आंसर इज कैपिटल रिसिप्ट्स. The right answer is capital receipt. Let me draw it so that you may understand it well. So capital receipt से हम उसको the criteria is met with. Now moving to, अब आपके अगर प्रश्न आ रहा है कि कैपिटल रिसिप्ट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कैपिटल रिसिप्ट हम किसे कहते हैं. कैपिटल रिसिप्ट्स आर रिसिप्ट्स दैट डोंट अफेक्ट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस. ध्यान से सुन, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है. कैपिटल रिसिप्ट के बाद हम रेवेन्यू रिसिप्ट पे भी बात करेंगे. तो कैपिटल रिसिप्ट्स आर द रिसिप्ट दैट डोंट अफेक्ट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस, एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर द रिसिप्ट दैट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस. तो कैपिटल रिसिप्ट्स स्टेम फ्रॉम नॉन ऑपरेशनल सोर्सेज एंड रेवेन्यू रिसिप्ट स्टेम फ्रॉम ऑपरेशनल सोर्सेज. तो ये दो तीन चीजें और हैं जिसे भी आप अपने ध्यान में रख सकते हैं. प्रश्न क्रमांक 52 की ओर बढ़ते हैं. विच रूल्स गवर्न the adjustment of account of central government with the state government? बड़ा प्रश्न है. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट किसके माध्यम से होता है? अब आप आज नई चीज जानेंगे. इट हैपन्स विद द गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल. इसे हम कहते हैं GAR. जैसे आपका GFR होता है वैसी GAR होता है. That was imposed in year 1990. अगर आप चाहें कि GAR पढ़ें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये GAR जरूर पढ़ें. आप देखिए व्हाट इज GAR. GAR जो होता है इसका अलग से अपने आप में जनरल अकाउंटिंग रूल्स 1990 है. चैप्टर इंट्रोडक्टरी है, शॉर्ट टाइटल के इसमें डेफिनेशंस है. जनरल अकाउंट जनरल क्या होता है, बैंक का क्या मतलब होता है, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी कौन होते हैं, सिविल अकाउंट ऑफिसर कौन होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, कैग का मतलब क्या होता है,
कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, कॉन्टीजेंसी फंड क्या होता है, डिफेंस डिपार्टमेंट क्या है, गवर्नमेंट का मीन क्या है, ये सारी चीजें इसमें दी हुई। ये अपने आप में एक अलग ही इतिहास है that you need to read. I will give you this in description box with a heading गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल। आप उससे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जिन क्वेश्चंस को आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिन क्वेश्चंस की आज हम बात कर रहे हैं, 51 से लेकर 100 हमारा टारगेट है, इन प्रश्नों की भी एक लिंक के माध्यम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि कितने क्वेश्चन पे आप कंफर्टेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी फॉर री ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पास्ट ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग एरर्स इन क्लासिफिकेशन? इसका सीधा सीधा उत्तर है 3 ईयर्स। जो पीरियोडिसिटी है री ऑडिट का वो 3 ईयर्स। व्हाट इज द क्रूशियल डेट फॉर क्लोजर ऑफ इंटर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट अंडर जीएफआर? जीएफआर के अंतर्गत इंटर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट जो होना रहता है उसकी डेट है 15 अप्रैल एवरी ईयर, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 55, द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंटर डिपार्टमेंट पेमेंट? इंटर डिपार्टमेंट जो पेमेंट होता है उसके लिए कौन से 2 डिपार्टमेंट बनाए गए हैं? तो आप उसे याद रखेंगे एससीडी के नाम से, सर्विस एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट, सर्विस एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट। हाउ इज द टर्म रिकवरी डिफाइंड इन जनरल फाइनेंशियल रूल? रिकवरी का सीधा सीधा मतलब, माय डियर फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहाँ पे, हमें टीए बिल मिला, एक्सेस पेमेंट हो गया, उस पेमेंट को हमसे क्या किया जाता है? रिकवर किया जाता है। तो ये रिकवरी और जिस रिकवरी की मैं बात कर रहा हूँ वो अलग है। जनरल फाइनेंशियल रूल में रिकवरी जिसकी बात की गई है दैट इज डिफरेंट। देन व्हाट इट इज? तो ध्यान से देखिए, रिकवरी इज डिफाइंड एज पेमेंट रिकवर्ड फॉर डिफेक्टिव सप्लाई, ये आंसर नहीं है। और रिकवरी इज डिफाइंड एज पेमेंट रॉन्गली मेड बीइंग कलेक्टेड बैक, ये भी नहीं है, जबकि हम रिकवरी का मतलब इन दोनों से समझते हैं। लेकिन फिर से मैं बोल दूं, जनरल फाइनेंशियल रूल के तहत रिकवरी का अर्थ होता है रिकवरी डिनोट्स पेमेंट और रीपेमेंट बाय वन डिपार्टमेंट ऑफ द सेम गवर्नमेंट टुवर्ड्स चार्जेस इनिशियली इनकर्ड बाय अनदर डिपार्टमेंट, इसे हम रिकवरी कहेंगे। आई होप इट इज द आइडिया इज क्लियर। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से फिर से पढ़ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ वर्क्स इंक्लूड, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है उसका क्या वर्क होता है? अजम्पशन ऑफ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड अपकीप, यस ये बिल्कुल सही उत्तर है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ बिल्डिंग एंड अलाइड वर्क, ये भी सही उत्तर है। सी है बोथ ए एंड बी, इसका मतलब ये उत्तर है, ये नाइदर ए एंड बी रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान रखें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। Which of the following powers are delegated to subordinate authorities by the delegation of financial power rule? कल मैंने इसकी बात की थी DFPR, आपको ध्यान होगा कल मैंने बात की थी DFPR, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं? फिर से ध्यान दीजिए, ऑल द अबव है, मतलब विशेष तौर से पढ़ने की आवश्यकता है। टू अकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, बिल्कुल ठीक है। टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ठीक है। टू री अप्रोप्रिएट फंड, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो 58 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल द अबव इज गोइंग टू बी द आंसर। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द लिमिट अप टू विच अ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में डायरेक्टली एग्जीक्यूट रिपेयर वर्क? फ्रेंड्स एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पे आप सभी प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, जरूरी नहीं है ये जो हम जीएफआर पढ़ रहे हैं वो केवल केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली गवर्नमेंट या नवोदय विद्यालय या ईएमआरएस पे लागू नहीं होता है। ये जीएफआर जो है सारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर लागू होता है। तो आप इसे अपने स्कूल के प्रोस्पेक्टिव से नहीं देखेंगे, आप टोटल अकाउंटिंग देख रहे हैं, इस बात पे ध्यान रखेंगे। क्योंकि ये जो प्रश्न है 59, थोड़ा सा आपको अचरज लग सकता है।
फिर से मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। व्हाट इज द लिमिट अप टू विच अ मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में डायरेक्टली एग्जीक्यूट रिपेयर वर्क, और उसकी लिमिट है 30 lakhs। 30 lakhs तक आप रिपेयर, और मिनिस्ट्री, स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टोटल मिनिस्ट्री की या टोटल डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, वो रिपेयर वर्क कर सकती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द सीक्वेंस इन विच द प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूशन वर्क शुड बी कैरिड आउट। एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क हाउ इट शुड बी कैरिड आउट। तो चलिए पांचों ऑप्शन पढ़ते हैं क्योंकि इसमें समय लगने वाला है इस प्रश्न में। प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड डिजाइन एंड एस्टिमेट, ये तो आपको सबसे पहला काम होना चाहिए। और ये फाइनल पेमेंट ऑफ वर्क, ये आपका सबसे अंतिम काम होना चाहिए। तो पहला और पांचवा सीक्वेंस में देख लीजिए, पहला और पांचवा ये भी ठीक हो सकता है, पहला और पांचवा ये भी ठीक हो सकता है। इसमें पहला और दूसरा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहला और चौथा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आपको इन दोनों पे कंसीडर करना है। आप पूरा पांचों पढ़ लीजिए, आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा। लिमिटेड टेंडर विल बी कॉल्ड फॉर वर्क कॉस्टिंग लेस देन ₹5 लाख, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और अवार्ड ऑफ वर्क, ये तो पेमेंट के जस्ट पहले ही होगा। इशू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सैंक्शन ऑफ एस्टिमेट, तो सीधा सीधा आप देखिए पहले नंबर पे तो आपने क्या किया, ये किया प्रिपरेशन ऑफ डिटेल डिजाइन एंड एस्टिमेट। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, इशू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, एक्सपेंडिचर सैंक्शन ऑफ एस्टिमेट, और उसके बाद फिर आप करेंगे लिमिटेड टेंडर विल बी कॉल्ड फॉर द वर्क कॉस्टिंग लेस देन 5 लाख, और फिर उसके बाद आपका होगा एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और अवार्ड ऑफ वर्क। आप कॉन्ट्रैक्टर को काम देंगे और फिर लास्ट में पेमेंट करेंगे। तो द राइट ऑप्शन इज बी। इस तरीके से आप आंसर फाइंड आउट कर लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। आगे के जो प्रश्न आएंगे थोड़े से डिफरेंट लगेंगे आपको, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट वी आर लुकिंग इट इन द प्रीव्यू ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल। डोंट कीप ओनली योर स्कूल इन योर माइंड, यू हैव टू कीप लॉट्स ऑफ थिंग्स इन योर माइंड। ऑन ग्राउंड ऑफ अर्जेंसी, हु इज कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट कमेंसमेंट ऑफ वर्क विदाउट ऑब्जर्विंग यूजुअल फॉर्मेलिटीज। कौन वो अथॉरिटी है जो ग्राउंड ऑफ अर्जेंसी पे बिना यूजुअल फॉर्मेलिटीज के डिसीजन ले सकते हैं? द राइट आंसर इज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंसर्न। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंसर्न कैन टेक द डिसीजन फॉर प्रोजेक्ट्स अप टू ₹100 crore। पावर्स आर वेस्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। ओके, 100 करोड़ रुपए तक एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो है उनको पावर दिए गए हैं, या डिपार्टमेंट को, टू एक्सेप्ट ए वेरिएशन इन द अप्रूव्ड एस्टिमेट। तो उस अप्रूव्ड एस्टिमेट में वो कितने % का वेरिएशन एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो हमेशा ध्यान रखेंगे केवल 10% का वेरिएशन। 100 करोड़ का है तो वो 110 करोड़ तक जा सकता है, इससे ज्यादा का वेरिएशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। विच आइटम विल नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ डेफिनेशन ऑफ गुड्स। इनमें से किनसे आप गुड्स नहीं कहेंगे? तो जो बुक्स है, पब्लिकेशन है, पीरियोडिकल्स है, इन्हें गुड्स की श्रेणी में हम नहीं देंगे। प्लेन क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 64, विच फंडामेंटल प्रिंसिपल इज एसेंशियल फॉर एन अथॉरिटी डेलीगेटेड विथ फाइनेंशियल पावर फॉर प्रोक्योरिंग गुड्स इन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में गुड्स प्रोक्योर करने के लिए कौन सा फाइनेंशियल पावर होना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं, आप पढ़ लीजिए। मैं 5 सेकेंड 10 सेकेंड का पॉज पर्पजली देता हूं ताकि आप सारे ऑप्शंस को पढ़ सके। फिर से ऑल द अबव है तो हमको चारों फिर से पढ़ने पड़ेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये तो रहेगी ही रहेगी। फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ सप्लायर, ये भी आपको देखना पड़ेगा। प्रमोशन ऑफ कंप्लीशन इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट, ये भी होगा। तो फिर से आपका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। आगे बढ़ते हैं। While making a public procurement, the description of the subject matter should not contain which of the following? While making a public procurement आप कर रहे हैं, the description of the subject matter should not contain which of the following? तो description of subject matter में इनमें से कौन सी चीज जरूरी नहीं है? तो देखिए, अब पर्टिकुलर ट्रेडमार्क या ट्रेड नेम या ब्रांड, ये जरूरी नहीं है। हम बाकी सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे ध्यान देंगे।
क्वालिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोक्यूर्ड, इस पे ध्यान देंगे। अ कंप्लीट शेड्यूल ऑफ प्रोक्यूरमेंट साइकिल, इस पे ध्यान देंगे, इस पे ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो बहुत सारे प्रश्न आएंगे फ्रेंड्स जेम पे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे। जब हम बात करेंगे तो इसका क्या सिस्टम होता है काम करने का, कितने साल के लिए होता है, क्या कैसे सप्लायर को रजिस्टर किया जाता है। तो आने वाले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 प्रश्न आपको जेम से रिलेटेड आएंगे एग्जामिनेशन में, ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हु विल सर्टिफाई एंड रजिस्टर सप्लायर ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, कौन उसको रजिस्टर करेगा और कौन उसको सर्टिफाई करेगा। द आंसर इज सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्हें रजिस्टर करेगी और उन्हें सर्टिफाई करेगी। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर इन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। एक बार जो कोई भी फर्म रजिस्टर हो गई है तो वो सॉरी कितने सालों के लिए वैलिड होते हैं। तो द आंसर इज 1 to 3 year, minimum 1 year and maximum 3 year it is it will be called as valid. Now question number 68, who will authorize to prepare the list of registered supplier। रजिस्टर्ड सप्लायर की लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए कौन ऑथराइज्ड है, एंड द राइट आंसर इज DGS&D। अब आपका प्रश्न एक बन सकता है, व्हाट इज DGS&D। तो देखिए फ्रेंड्स, DGS&D is tasked primarily with fixing rate contracts RC for common user items required by various government organizations through an online e-procurement portal. Presently, it is being managed by 2 organized Group A services, namely Indian Supply Services and Indian Inspection Services. DGS&D rate contracts are used by central government ministries, departments, PSUs and state government। यहाँ पे आप 2 प्रश्न सीखे। पहला तो ये कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इनका काम क्या होता है, और अभी कौन से 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहे हैं इस पे, इंडियन सप्लाई सर्विसेज और इंडियन इंस्पेक्शन सर्विसेज, ये इसके लिए काम कर रहे हैं। तो बीच में इस तरीके के अगर काउंटर क्वेश्चंस बनते हैं तो मेरी पूरी कोशिश है कि उन काउंटर क्वेश्चंस का भी मैं कुछ एक्सप्लेनेशन आपको दे सकूं। क्वेश्चन नंबर 69, व्हेन विल अ बिडर बी डीबार्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसे आप कब डीबार करेंगे। 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर वो कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है तो उसे डीबार कर दिया जाएगा। अब ये कन्विक्शन ऑफेंस एक्ट कौन सा है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 कौन सा है, इसे आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिबारमेंट ऑफ अ बिडर अंडर सेक्शन 151(1) ऑफ GFR। एक बार किसी को डीबार कर दिया तो वो कितने समय तक के लिए डीबार ही रहेगा। तो कम से कम 3 साल तक वो फिर से रजिस्टर और सर्टिफाई नहीं हो सकता। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बहुत सारे प्रश्न आपको अमाउंटिंग पे आएंगे, तो डिफरेंट ओकेजन के डिफरेंट अमाउंट्स आप ध्यान रखें, आपके लिए अच्छा होगा। व्हाट इज द फाइनेंशियल लिमिट ऑफ परचेस ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन और बिड्स। बिना बिड्स के, बिना कोटेशन के आप कितने तक का अमाउंट, कितने तक का गुड्स परचेस कर सकते हैं। द आंसर इज 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिट अप टू विच अ ड्यूली constituted financial committee can purchase goods on each occasion। कितने तक का गुड्स एक जो कमिटी है कंस्टिट्यूट की गई है डिपार्टमेंट के द्वारा, वो कितने तक का परचेज कर सकती है। द राइट आंसर इज 2,50,000। हाउ मेनी मेथड्स आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग बिड्स। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को मार्क कर लीजिए। जहां तक मैं इसे नाम देना चाहूंगा, ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है। विवाद क्या है मैं बताता हूं। हाउ मेनी मेथड्स आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग बिड्स। स्वामी हैंडबुक कहता है द राइट आंसर इज C, 5। मेरा रिसर्च कुछ और कहता है, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा।
6 types of procurement are there. I have find out. I have read it somewhere. So I thought let me keep it open for you. पहला open tendering, दूसरा restricted tendering, तीसरा request for proposal और चौथा two stage tendering, पांचवा request for quotations और छठवा सिंगल सोर्स प्रोक्यूरमेंट. तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर 6 होना चाहिए, परंतु स्वामी हैंडबुक में ये 5 दिया हुआ है. फ्रेंड्स, दिस इज होमवर्क फॉर all of you. Find it out and write the correct answer in the comment box so that the other viewers may find the right answer. I hope you will definitely do this homework so that along with you, I as well as other viewers may get the benefit of it. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर. What are the standard method adopted for obtaining bids during purchase of goods? परचेस ऑफ गुड्स के दौरान कौन सा स्टैंडर्ड मेथड एडॉप्ट की जाती है? एंड द राइट आंसर इज एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी को भी किया जाता है, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी को भी किया जाता है, सिंगल टेंडर इंक्वायरी को भी किया जाता है. तो द आंसर इज ऑल द अबव. ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 75. We are in the middle of the video now. We have already done 25 question and rest 25 question we expect to do. What is the estimated value of goods to be procured for which invitations to tender can be made by advertisement? एडवर्टीजमेंट के द्वारा आप टेंडर को बुला सकते हैं, उसके लिए कितने तक का अमाउंट होना चाहिए? एंड द राइट आंसर इज 25 lakhs एंड अबव. क्वेश्चन नंबर 76. लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में भी अडॉप्टेड when estimated value of goods to be procured is up to. कितने लाख रुपए तक का है तब आप लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में भी लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी को तब आप अडॉप्ट कर सकते हैं. एंड द राइट आंसर इज ₹25 lakhs. द नंबर ऑफ सप्लायर फर्म्स इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी शुड बी मोर देन. कम से कम कितने होने चाहिए? द आंसर इज 3. Which system is being followed for purchase of high value plant machinery etc. of a complex and technical nature? Which system is being followed? कौन से सिस्टम को फॉलो किया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे जब प्लांट या मशीनरी की बात आती है कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल नेचर की, तो 2 बिड सिस्टम को फॉलो किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 79. Under what circumstances is a single tender inquiry system adopted? सिंगल टेंडर इंक्वायरी सिस्टम को कब अडॉप्ट किया जाता है? दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर देखने को आते हैं. फिर से ऑल द अबव इज द आंसर. बिकॉज व्हेन रिक्वायर्ड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय अ पर्टिकुलर फर्म, इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हेन द रिक्वायर्ड गुड्स आर नेसेसरीली टू बी परचेज्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स, तब हम सिंगल टेंडर इंक्वायरी सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं. फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीनरी और स्पेस पार्ट्स to be compatible to the existing set of equipment resulting in purchase only from a selected firm. ये भी राइट है. The right answer is all the above. What is the percentage of bid security required to be furnished? ये हम सबको सीनियर पीजीटीज होने के नाते आप सबको पता होगा और ये काम आप करते होंगे. हमारे बहुत सारे साथी जेम पोर्टल पे काम करते होंगे. दे मस्ट बी मास्टर ऑफ इट. तो बाकी सब उनसे सीख सकते हैं और यहाँ पे जो फैक्ट एंड फिगर है उनसे हम सीख सकते हैं. व्हाट इज द क्वेश्चन इज what is the percentage of bids security required to be furnished by bidder in the case of limited or advertised tender inquiry? And the right answer for this is A, 2 to 5%. Question number 81 now. When will bid securities be refunded to the unsuccessful bidder? Unsuccessful bidder के securities को आप कब वापस करेंगे? ये days and date are very important friends. On or before the 30th day after the award of the contract. Contract देने के बाद तीसरे दिन या तीसरे दिन के बाद आप उसे वापस कर सकते. क्वेश्चन नंबर 82. What should be the period of validity of a bid security? What is the just a minute.
sorry friends for the inconvenience. Now what should be the period of validity of a bid security? Bid security की period of validity क्या होती है? तो ये जो validity होती है 45 days beyond the final bid validity period. Question number 83. In what form will a bid security be accepted? Bid security को आप किस किस फॉर्म में एक्सेप्ट कर सकते हैं? बैंक गारंटी एक्सेप्ट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो आंसर हो गया ऑल द अबव. अब आगे बढ़ते हैं. अ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड बी फॉर एन अमाउंट ऑफ डैश ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज स्पेसिफाइड इन द बिड डॉक्यूमेंट. फिर से प्रश्न को पढ़ता हूं आपके लिए. अ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो हम लेते हैं शुड बी फॉर एन अमाउंट ऑफ डैश परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज स्पेसिफाइड इन द बिड डॉक्यूमेंट. जितने जो हमने अमाउंट दे रहे हैं उसका कितना परसेंटेज कम से कम होना चाहिए. द राइट आंसर इज 5 to 10%. What should be the validity period of performance security beyond the date of completion of all contract obligation? All contract obligation के बाद भी उस सिक्योरिटी की कितनी डेट ऑफ वैलिडिटी पीरियड कितना होना चाहिए? दैट इज द क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज 60 days. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एडवांस पेमेंट दैट इज मेड टू प्राइवेट फर्म? ध्यान रखना प्राइवेट फर्म आया तो गवर्नमेंट फर्म भी आएगा. तो प्राइवेट फर्म को ये 30% हम एडवांस दे सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का, और गवर्नमेंट फर्म को हम 40% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का एडवांस दे सकते हैं. ये दोनों में अंतर ध्यान रखेंगे. विच रूल इन GFR स्पीक्स अबाउट ट्रांसपेरेंसी, competition, fairness and elimination of arbitrariness in the procurement process? तो कौन सा रूल इसकी बात करता है? तो वो रूल है रूल नंबर 173. Should a bidder request or inquiry about the reason for rejection or non-issuance of a tender to a prospective bidder, is it mandatory to disclose the reason? हम रीजन डिस्क्लोज कर सकते हैं कि नहीं, और बिडर रिक्वेस्ट कर सकता है कि नहीं? तो दोनों का ही आंसर है यस. He can request and we should not deny. We can disclose the reason. प्रश्न क्रमांक 90 की ओर. A list of potential consultant is to be prepared if the estimated cost of the consulting services is up to. कितने तक का अमाउंट हो जाए तो आपको पोटेंशियल कंसल्टेंट लेना होगा? That is the question and the right answer is 25 lakhs. Which of the following services come under the purview of consulting services? किस किस सर्विस को आप कंसल्टिंग सर्विस के अंतर्गत काउंट करेंगे? किन सर्विसेज को आप कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंतर्गत काउंट करेंगे? पॉलिसी कंसल्टेंसी सर्विस करेक्ट है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस करेक्ट है, एडवाइजरी एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड कंसल्टेंसी सर्विस करेक्ट है. तो फिर से ऑल द अबव इज द आंसर. While shortlisting the potential list of consultant, what should be the minimum number of consultant? अगर आप रख रहे हैं तो कंसल्टेंट के मिनिमम नंबर क्या होगा? अब वो मिनिमम नंबर होगा 3. ध्यान रखेंगे. What are the content to be incorporated in terms of reference? TOR. इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा. टर्म ऑफ रेफरेंस को एब्रीविएट हम कैसे करते हैं? TOR. इस बात को ध्यान रखें. What are the content to be incorporated in the TOR? हमारा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आउटलाइन ऑफ द टास्क टू बी कैरिड आउट होना चाहिए, शेड्यूल फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क होना चाहिए. इट मींस ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर. 94. आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट दैट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल. ये RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल. रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में कौन सी चीज जरूरी नहीं है, कौन सी चीजें इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट? ये आपका प्रश्न है. अ लेटर ऑफ इन्विटेशन होना चाहिए, टर्म ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, बिड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होना चाहिए, प्रपोज्ड लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कंसल्टेंट आवश्यक नहीं. द राइट आंसर इज proposed list of potential consultant.
आगे बढ़ते हैं अंतिम पांचवें प्रश्न की ओर। विच बिड इज ओपन्ड फर्स्ट बाय अ मिनिस्ट्री इन टू बिड सिस्टम। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। मिनिस्ट्री में कौन से बिड को पहले खोला जाएगा, फाइनेंशियल बिड को, टेक्निकल बिड को, कि बोथ शुड बी ओपन साइमल्टेनियसली, या एनी वन बिड? एंड द राइट आंसर फॉर इट इज टेक्निकल बिड को पहले खोला जाता है। सो दिस इज द राइट आंसर। हु विल इवैल्यूएट द टेक्निकल बिड? टेक्निकल बिड को कौन इवैल्यूएट करेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। टेक्निकल बिड को कौन इवैल्यूएट करेगा? तो उसे कंसल्टेंसी इवैल्यूएशन कमिटी, सीईसी, कंसल्टेंसी इवैल्यूएशन कमिटी इवैल्यूएट करेगी। इन QCBS व्हाट इज द हाईएस्ट वेटेज अलाउड फॉर टेक्निकल पैरामीटर? तो सबसे पहले आपके मन में प्रश्न आया होगा ये QCBS है क्या? तो दोस्तों देखते हैं QCBS क्या है। क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, QCBS, क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, दैट इज नोन एज QCBS। ये क्या होता है? इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन द कॉस्ट कमिटी बाय कमिटेड बाय द बिडर एंड द टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑफ द बिडर, उसे हम बोलते हैं क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन, QBS। इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन द टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑफ द बिडर इज नोन एज QCBS। अभी एक और टर्म आने वाला है, एक साथ देख लेते हैं। CPPP, ये क्या होता है? सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल होता है। इट फैसिलिटेट्स ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू पब्लिश देयर टेंडर इंक्वायरीज फॉर एजेंडा एंड अवार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट डिटेल। तो ये CPPP की अभी चर्चा करने वाले हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि इन क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन व्हाट इज द हाईएस्ट वेटेज अलाउड फॉर द टेक्निकल पैरामीटर? टेक्निकल पैरामीटर के लिए कितना परसेंटेज अलाउड करेंगे? तो द राइट आंसर इज 80%। व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द नॉन कंसल्टिंग सर्विस फॉर विच इन्विटेशन ऑफ बिड इज डन थ्रू एडवर्टीजमेंट इन CPP ऑफ JAM? ये CPP मैंने अभी आपको बता दिया। तो कितने तक का अमाउंट? व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ नॉन कंसल्टिंग सर्विस फॉर विच इन्विटेशन ऑफ बिड इज डन थ्रू एडवर्टीजमेंट इन CPP? तो द राइट आंसर इज अबव 10 लाख, 10 लाख के ऊपर है, उसे CPP और JAM में रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Which method is followed for inviting bids if the estimated value of non-consulting service is less than ₹10 lakh? अगर 10 लाख से कम है तो कौन सा प्रोसेस आप अपनाएंगे? तो आप लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी प्रोसेस अपनाएंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे माय डियर फ्रेंड्स, who should certify receipt of goods and materials and record it in the appropriate stock register? एप्रोप्रिएट स्टॉक रजिस्टर में उसे कौन रजिस्टर करेगा, कौन उसकी रिसिप्ट लेगा, कौन मटेरियल चेक करेगा? एंड द राइट आंसर इज स्टोर इंचार्ज। सो फ्रेंड्स, हियर वी फिनिश विद द 50 क्वेश्चन टुडे। दिस PDF with these notes and this government accounting I will keep in the description box. From there you can take it. Keep studying, keep watching this channel, and please keep suggesting me so that I may come up with a better plan and better ideas. Tomorrow I will see you in the next video where I will be discussing question number 101 to 150, and then one more video will be there in this GFR 19. In all I am going to discuss 190 questions. Thank you, have a nice day, keep watching, keep learning.